নিউজ টুডেতে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি দেখে নিচ্ছি এই মুহূর্তের বিশেষ কিছু খবর। কলকাতার এমএলএ হোস্টেলে এক বিধায়কের দেহরক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। শনিবার সকালে হোস্টেলের একতলা থেকে উদ্ধার হয় দেহ। জানা গিয়েছে, বান্দোয়া তৃণমূল রাজীব লোচন সোরেনের দেহরক্ষীর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শান্তিনিকেতনে বিজেপি নেতাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মার, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর চেষ্টা। ওই বিজেপি নেতাকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত অরুণ দাস বিজেপির এসসি মোর্চার বোলপুর সাংগঠনিক জেলার নেতা। অভিযোগ, বোলপুর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর সঙ্গীতা দাসের স্বামী ও স্থানীয় তৃণমূল নেতার নেতৃত্বে তাঁর উপরে হামলা হয়েছে। লোকসভার ভোটের আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে বিজেপির শিবিরে বড় সড় ধাক্কা। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সহ 31 জন বিজেপির পদাধিকারী পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত। দলীয় প্যাডে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। বেলদায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিজেপি নেতাদের বিক্ষোভ। বিজেপির জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। পদাধিকারীদের বিজেপির জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে প্রকৃত বিজেপি কর্মীদের বাদ দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। করোনার পর এবার কলেরার ভ্যাকসিন। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ও নাইসেডের যৌথ উদ্যোগে দেশে প্রথমবার শুরু হতে চলেছে করোনার ওরাল ভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। প্রাথমিক পর্যায়ে 30,000 মানুষকে ডোজ দেওয়া হবে। প্রথম ডোজ পাওয়ার 1 সপ্তাহ থেকে 6 সপ্তাহের মধ্যে নিতে হবে দ্বিতীয় ডোজ। এটা হচ্ছে একটা মানে বাইভ্যালেন্ট, O1 এর এগেনস্টেও কাজ করবে, O139 এর এগেনস্টেও কাজ করবে। আর এটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড হোলসেল ভ্যাকসিন, ওরাল ভ্যাকসিন। তো ওরাল ভ্যাকসিনটা দেওয়ার পরে এটা হচ্ছে অ্যাজ পার আপনার গাইডলাইন অফ দ্য ভ্যাকসিন, মানে এটা 1 বছরের ওপরে দিতে হবে, 1 বছরের তলায় কাজ করে না। 1 বছরের ওপর থেকে ওটা হচ্ছে একদম অ্যাডাল্ট, মানে 60 ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাবাভ সবাইকেই দেওয়া যেতে পারে। অযোধ্যা রাম মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র 3রা ফেব্রুয়ারি রাম মন্দির নির্মাণ কাজের পরবর্তী পর্যায়ের একটি বড় আপডেট দিয়েছেন। তিনি কি বলেছেন আমরা শুনবো। अब पुनः निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और मुख्य रूप से जो परकोटा का कार्य पूरा करना है, जो एक 795 मीटर की परिक्रमा की दीवार है, उस कार्य को पूरा किया जाएगा। और उसी के साथ जो लोअर प्लिंथ पे मंदिर के आइकनोग्राफी है, उस कार्य को भी शुरू होगा। और सबसे बड़ा कार्य जो मंदिर को पूर्ण किया जाना है, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे जहाँ की राजा राम का दरबार होगा, उस कार्य को अब तत्काल प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष दिसंबर 2024 में पूर्ण होगा। রাজ্যসভার বিরোধী দলীয় নেতা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে 2রা ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণে ধন্যবাদ প্রস্তাবের বিতর্কের সময় বক্তব্য রাখেন। তার ভাষণে যা পুরো সরকারি ক্যাম্পটি হাসতে ফেটে পড়েছিল। ओबीसी वुमेन्स को रिजर्वेशन 50% देंगे, हाँ दोगे। फिर परसों जब अपने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जल्द से जल्द इसको होना चाहिए, फिर क्यों उसको आपने उसको काउंटर अफिडेविट डाला? लेना था और लेकर आपका इतना बहुमत है। अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम सुन जाओ सर,
मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले, इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा रहे। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए तो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाना। प्लीज माननीय खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा और सत्य के अलावा कुछ से कहा, उसको प्रूव कर दिया। I think never a leader of opposition has been so applauded. It's a record. आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो, मेरे बयान की तारीफ नहीं, मैं वो भी समझता हूँ। तो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे, 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे। লোকসভা সাংসদ আশাউদ্দিন ওয়াইসি 2রা ফেব্রুয়ারি লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্রভাবে নিশানা করেছেন। তিনি বলেছেন যে দেশের 17 কোটি মুসলমান রাগান্বিত এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বিশ্বাস করেন না। সরকার তার নীতিতে মুসলমানদের প্রান্তিক করেছে। তিনি বলেন 17 কোটি নাগরিকদের মনে অবিশ্বাস সৃষ্টি করা মারাত্মক। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের পর 22শে জানুয়ারি যে অভিষেক অনুষ্ঠান হয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে ওয়াইসি বলেছিলেন, মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদী একজন পুরোহিত বা সম্রাট হয়েছেন, গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী নন। তিনি কি বলেছেন আমরা শুনব। हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी। इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते। मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए। कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का, बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था।
मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते हैं, अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए। आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर ऐसा अंग्रेजी में किसी ने कहा था, सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्ख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। নিউজ টুডে এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ, নির্ভীক নিরপেক্ষ।